Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to all my shining stars. I hope all of you are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to do remaining exercise of unit number 1. Please open your textbook page number 8 and the topic is common noun. Better look around in your room. Have a look in your room. You will see different things in your room like bed, sofa, cupboard, table, chairs. All these things are the name of different things and all these things are called common noun. So beta, what is common noun? A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. Okay, so the name of common person, place or thing is called common noun. For example, woman, dog, bag, office, hospital, etc. A common noun does not require a capital letter and takes an article before it. ठीक है बेटा, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं लाइक ए, एन और द. इनमें से कोई भी आर्टिकल अकॉर्डिंग टू वर्ड और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम यूज़ करते हैं. जैसे ऑफिस है, वाउल है, तो इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे, एन ऑफिस. ठीक है. और कॉमन नाउन में फर्स्ट लेटर हम किसी भी नाउन का कैपिटल नहीं लिखते, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाते हैं. कॉमन नाउन्स, द नेम ऑफ द कॉमन थिंग्स इज ऑलवेज रिटन इन विथ स्मॉल लेटर्स. Okay, my dear students, now come on the next page. This is page number 9 of your textbook and the topic is proper noun. Beta, when we give name to the things, these things become proper noun. For example, if there is a boy and boy is a common noun, and if I will give the name to the boy Ali or Rashid, you can say you can give any name, so it will become a proper noun. Like if I say month is a common noun, but if I'll give the name to the month like April, so it will be a proper noun. So what is the definition of proper noun? A proper noun is the name of some particular person, place or thing. So the name of particular, special or specific person, place or thing is called proper noun. For example, Irfan, Islamabad, Quran, Islam, etc. A proper noun is always written with a capital letter at the beginning and does not usually take an article before it. इसके साथ बेटे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता मोस्टली, और इसका जो फर्स्ट लेटर है, आप देखें यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं, इरफान का आई कैपिटल है, इस्लामाबाद का आई कैपिटल है, कुरान का क्यू कैपिटल है और इस्लाम का आई कैपिटल है. सो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है इट विल ऑलवेज बी अ कैपिटल. Next is part A. Read paragraphs 3 to 5 of the lesson and make a list of common nouns. You will read paragraph number 3, 4 and 5 of your lesson and you will find out the common nouns and you will write on your book. I have written here, you can see year, male, female, tribe, nation, brother, neck, day, interest. These words are common. These are common nouns. Next is read the last paragraph of the lesson and make a list of proper nouns. You will read the last paragraph and you will find out the proper nouns. I have written here, the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Arafat, Jabal Rahmat, Islam. Okay, beta, next is pronoun. बेटा, the words which are used instead of noun are called proper nouns. आप किसी के नेम की जगह कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, कोई वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे सपोज किसी का नेम आलिया है, आप आलिया की जगह शी यूज़ कर लेते हैं, तो शी क्या है? प्रोनाउन है. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नेम टू अवॉइड रेपिटेशन. ठीक है बेटा, बार बार किसी का नेम हर सेंटेंस में रिपीट ना हो, उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. द पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, इट, यू, ही, शी, दे, वी, एट्सेट्रा. ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा, ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो जाते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सलीम एंड अजमल आर नेबर्स.
तो अब सलीम और अजमल जो है ये नाउन है, इसकी जगह हम प्रोनाउन दे यूज़ करेंगे. दे इज़ यूज फॉर प्लूरल एंड दीज आर द नेम्स ऑफ 2 persons, सो वी विल यूज दे आर फास्ट फ्रेंड्स, एवरीबडी नोज देम. अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दे यूज़ हुआ है ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और देम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. Okay, my dear students, next is part C. Read the following and underline the pronouns. 5 sentences are given here. You will read each sentence and you will underline the pronouns. He delivered his last sermon on 9th Zilhaj 10 AH. He is a pronoun. You will underline it. His is a pronoun. You will underline it. Second sentence is he Sallallahu Alaihi Wasallam advised his companions to devote their lives for the service of Islam. He is a pronoun, underline it, his and their. Underline these words. Third sentence is if you were asked about me, what would you say? You को underline करेंगे, me को underline करेंगे and again you को underline करेंगे. All praise is due to Allah, so we praise him. We को अंडरलाइन करेंगे और हिम को अंडरलाइन करेंगे. दीज आर प्रोनाउंस. वेरीली यू विल सून मीट योर लॉर्ड. यू और योर को अंडरलाइन करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 10. रीड ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस एंड सर्कल द प्रोनाउंस इन द सेकेंड सेंटेंस. अंडरलाइन द नाउन और नाउन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस that the pronouns replaces. The first one is done for you. Okay beta, the first sentence is the hearing aid is used for hearing. So hearing aid के लिए ये noun है, इसके लिए हमने pronoun it यूज़ किया है, उसको हम सर्कल कर देंगे. Bees collect pollen. Bees is plural, so we'll use they. They is a pronoun, इसको आप सर्कल कर देंगे. मदर एंड फादर वेंट टू द मार्केट. मदर एंड फादर नाउन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और ये प्लूरल है तो हम दे यूज़ करेंगे. दे को आप सर्कल कर देंगे. दे वेंट टू द मार्केट. सबिहा वेंट टू होम. शी वेंट टू होम. बुक्स एंड मैगजीन्स वर पाइल्ड ऑन द टेबल. दे वर पाइल्ड ऑन द टेबल. अदनान रैन इन द रेस. ही रैन इन द रेस. ओके बेटा, नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. I told you in previous lecture beta, a regular verb is the one that follows the pattern of taking ed for simple past and past participle forms. बेटे मैंने कल भी आपको बताया था कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम जस्ट ed या d ऐड कर देते हैं, उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड. अब प्ले के एंड पे हम ed जस्ट ऐड करे हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में. सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं हो रही, जस्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ हम अगर ई डी ऐड कर दें तो वो रेगुलर वर्ब बन जाता है उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म. ठीक है. एंड, एंडिड, एंडिड. तो वो वर्ड्स वो वर्ब्स बेटा जिनके एंड पे हम डी या ई डी ऐड कर दें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. इरेगुलर वर्ब्स. एन इरेगुलर वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट टेक ई डी एंडिंग फॉर द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स. ठीक है बेटा, वो वर्ब्स जिनकी एंडिंग डी या ई डी पे ना हो उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे कैच, कॉट, कॉट. अब कैच के साथ हम ई डी हमने यूज़ नहीं किया बल्कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है. कॉट, कॉट. गो, वेंट, गो. ठीक है. सो वो वर्ब्स जिनके एंड पे ई डी ना आए वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं और वो वर्ब्स जिनके एंड पे जिनकी एंडिंग ई डी पे हो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आपने इनमें से इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स को फाइंड आउट करना है. जो इरेगुलर हैं बेटा मैंने उन पे आई डॉट आर लिखा है और जो रेगुलर है उन पे मैंने आर लिखा है. ठीक है. आप इसी तरह आप लोग भी करेंगे. जो इरेगुलर है उस पर आप आई डॉट आर मैंशन कर लें या पूरा इरेगुलर भी आप लिख सकते हैं. रन, रैन, रन. तो ये इरेगुलर है, आप इस पर आई डॉट आर लिखेंगे. एड, एडिड, एडिड. दिस इज रेगुलर. गो, वेंट, गॉन. इरेगुलर. प्रे, प्रेड, प्रेड. ई डी ऐड होता है. दिस इज रेगुलर. लाइट, लाइटेड, लाइटेड. अगेन रेगुलर. डिले, डिलेड, डिलेड. रेगुलर. टाइड, टाइड, टाइड. रेगुलर. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. नाउ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज डिफरेंट. दिस इज इरेगुलर. मेंड, मेंडेड, मेंडेड. रेगुलर.
laugh, laughed, laughed, regular, come, came, come, irregular. Page number 11, simple present tense. Now what is present tense beta? When an action is going on in present time is called present indefinite tense, and you can also say that the simple present tense is used to express a habitual action. बेटे वो टेंसेस जो एक्सप्रेस करते हैं आपकी डेली रूटीन को, आपकी हैबिचुअल एक्शंस को, जो काम आप डेली बेसिस पे करते हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह ऑलमाइटी. हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं. माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम. ठीक है. आई गो टू स्कूल. सो वो काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, आपके रूटीन में होते हैं, वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में बेटे वर्ब्स दिए गए हैं, आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस को ब्लैंक्स को फिल करना है उनको यूज़ करते हुए. एवरी मैन, नो नहीं आएगा, नोज आएगा. ठीक है. नोज व्हाट टू डू. ईच चाइल्ड रिसीव्स अ प्रेजेंट. ये एज अ सिंगुलर यूज़ हो रहा है बेटा, इसलिए हम एस और एस ऐड कर रहे हैं. माई फादर डेली ड्राइव्स मी एंड माई सिस्टर टू द स्कूल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. नन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ टिकट. ओके. नेक्स्ट इज बेटा पिक आउट सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन. लेसन में जो प्रेजेंट टेंस यूज हुए हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे. लाइक वी सीक रिफ्यूज विद अल्लाह. इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. आप सर्च करेंगे, जितने भी प्रेजेंट टेंस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग. द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स. ठीक है बेटा. पंक्चुएशन जो है वो किसी भी सेंटेंस की सेंस को क्लियर करने के लिए, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि सेंटेंस जो है वो क्लियर हो सके, उसमें क्या बात हो रही है, बात क्लियर हो सके, सेंस क्लियर हो. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज. लाइक फुल स्टॉप, इसको पीरियड भी कहते हैं, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी एंड क्वेश्चन मार्क्स. Punctuate the following sentences. 5 sentences are given here beta. We will punctuate these sentences first when we will start writing. So the first letter of every word or each sentence is always a capital. So this is a sentence, so first letter will be capital. W will be capital of where are you going. W will be capital, and it is a question, so we will put question mark at the end. Hooray. H will be capital. After hooray we will put exclamation mark. We have won the match. At the end there will be full stop. It's a great tragedy, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. और alas इसके बाद exclamation, a great tragedy, ये इस तरह से भी आ सकते हैं. Lahore is the capital of Punjab. L will be capital of Lahore and P will be capital of Punjab. What a beautiful scene. W will be capital and at the end you will put exclamation mark. But next is page number 12. Writing skills. Write down in simple sentence what do you do, what you do every day. यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हुए आप डेली क्या करते हैं, अपनी डेली रूटीन पे आप एक पैराग्राफ लिखेंगे. यू विल राइट दिस पैराग्राफ ऑन योर नोटबुक. ओके बेटा. यू विल राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर डेली रूटीन इन प्रेजेंट टेंस ऑन योर नोटबुक. दिस इज oral communication skill. This is a dialogue. You can practice it with your sister or brother at home. Come on the next page. Beta, you will do a group activity. You will practice this dialogue in pairs, means with your sister or with your brother. You will do practice of it. All right, suggested readings. Ask. Okay. Beta, you can search from the internet the book on the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then you will read it and you will share the knowledge. Next is glossary beta. You will read this glossary and you will also learn it. The glossary is on 2 pages, page number 13 and 14. You will learn these synonyms. Okay, you will learn the glossary. Okay my dear students, this is all about today. If you have any query you may discuss with me. Allah Hafiz.